ہم نے صبح سورج نکلنے کے وقت اپنے ٹارگٹ کا سروے کرنے کا پروگرام بنایا اور اپنی اپنی چارپائیوں پر بیٹھ کر اپنے مشن کے بارے میں آہستہ آہستہ باتیں کرنے لگے۔ کھانا ہم نے بازار کے ریستوران سے کھا لیا تھا۔ 10 بجے رات تک ہم اپنے مشن کے امکانات اور اندیشوں پر غور و فکر کرتے رہے، اس کے بعد سو گئے۔ صبح اس وقت بیدار ہوئے جب گلی میں سے ایک ٹرک شور مچاتا ہوا گزرا۔ پہلے میری آنکھ کھلی، اس کے ساتھ ہی کمانڈو اورنگزیب بھی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یہ ٹرک تھا؟ ہاں، میں نے کہا۔ میں نے اٹھ کر کھڑکی میں سے جھانک کر دیکھا، شاید کچرا اٹھانے والا ٹرک تھا۔ گلی میں کھمبوں کی بتیاں روشن تھیں، ان کی روشنی میں مجھے ٹرک کا پچھلا حصہ بازار کی طرف گھومتا نظر آیا۔ میں نے اورنگزیب سے کہا، جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہمیں سورج نکلنے سے پہلے سمندر پر پہنچ جانا چاہیے۔ رات کو ہم نے پونڈیچری کی بندرگاہ کی سمت معلوم کر لی تھی۔ 5 منٹ کے بعد میں اور کمانڈو اورنگزیب رات کے لمحہ بلمحہ غائب ہوتے اندھیرے اور دم بدم بڑھتی ہوئی دن کی روشنی میں سرائے کی ڈیوڑی میں سے نکل کر بندرگاہ کو جاتی سڑک پر روانہ ہو گئے۔ کوئی 3-1 فرلانگ چلنے کے بعد ہمیں کچھ فاصلے پر پانی کی سیاہ چادر دور تک پھیلی ہوئی دکھائی دی۔ اس کے ایک جانب کنارے پر دور تک روشنیاں چلی گئی تھیں۔ ان روشنیوں کا عکس پانی میں جھلملا رہا تھا۔ کمانڈو اورنگزیب کہنے لگا، ہمیں یہاں رک کر دن نکلنے کا انتظار کرنا چاہیے، اندھیرے میں ہم کسی غلط جگہ بھی جا سکتے ہیں۔ فوجی اسلحے سے لدے ہوئے جہازوں کی وجہ سے سیکیورٹی کے انتظامات کافی سخت ہوں گے۔ ہم ایک جگہ ناریل کے درختوں کے نیچے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد آسمان پر روشنی کے دھارے پھوٹنے لگے۔ یہ سورج طلوع ہونے کے پہلے کی روشنی تھی۔ سمندر میں اس سنہری روشنی نے آگ سی لگا دی۔ آہستہ آہستہ یہ ملگجی روشنی سورج کے طلوع ہونے کے بعد دن کے اجالے میں تبدیل ہو گئی۔ اب ہمارے سامنے سارا منظر واضح تھا۔ ہم نے دیکھا کہ جس طرف رات کو روشنیاں نظر آ رہی تھیں، اس طرف 10-12 بڑے بڑے سمندری جہاز کھڑے تھے۔ ان کے آگے سمندر کا کنارہ ناریل کے جھنڈوں کے ساتھ دور تک چلا گیا تھا۔ دائیں جانب بھی چھوٹے بڑے جہاز کھڑے تھے جن کے قریب سے ہو کر سٹیمر گزر رہے تھے۔ ایک جگہ چھوٹی سی عمارت تھی جس کے اوپر کوئی جھنڈا لہرا رہا تھا۔ کمانڈو اورنگزیب نے کہا، میرا خیال ہے یہ بندرگاہ کی عمارت ہے۔ ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ جیا گامی کی کھاڑی کس طرف ہے۔ وہاں 2 چٹانیں سب سے بڑی نشانی ہے، جہاں سے اٹھ کر اس طرف چلتے ہیں۔ جہاں ہم بیٹھے تھے وہاں کوئی انسان نہیں تھا۔ ذرا آگے سمندر کے ریتیلے کنارے پر چلتے گئے تو کچھ جھونپڑے نظر آئے۔ ان کے سامنے سمندر کے پانیوں میں چھوٹی چھوٹی کشتیاں بندھی ہوئی تھیں۔ کالے کالے چند ایک ماہی گیر بھی بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے اور بیڑیاں پی رہے تھے۔ میں نے کمانڈو اورنگزیب سے کہا، میرا خیال ہے کہ یہ ملاح ہیں، ان میں سے ایک کشتی لے کر سمندر کی سیر کرتے ہیں، اس طرح ہمیں زیادہ دور تک جانے کا موقع مل سکے گا۔ ہم نے ملاحوں سے ایک کشتی کرائے پر لے لی۔ ملاح نے کہا کہ وہ کشتی خود چلائے گا۔ ہم نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ ہم کشتی میں بیٹھ گئے۔ تامل ملاح جس نے صرف گھٹنوں پر لنگی پہن رکھی تھی، کشتی میں بیٹھ کر چپو چلاتے ہوئے کشتی کو کنارے سے نکال کر سمندر میں لے آیا۔ وہ کنارے سے کچھ فاصلے پر کشتی کو آہستہ آہستہ ایک جانب چلانے لگا۔ اسے معلوم تھا کہ جو لوگ سمندر کی سیر کو وہاں آتے ہیں انہیں کس طرف لے جانا ہوتا ہے۔ ہم آپس میں پنجابی زبان میں باتیں کرنے لگے تاکہ یہ تمل مدراسی ملاح ہماری گفتگو سمجھ نہ سکے۔ میں نے ملاح سے ہندوستانی اردو میں کہا، ادھر والا جو جہاز بازو میں کھڑے ہیں اس طرف جانے کو مانگتا۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے اس سے بھی زیادہ غلط سلط اردو میں تمل ملاح سے بات کی تھی۔ وہ بولا اس کی اردو مجھے یاد نہیں رہی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں اس طرف نہیں جا سکتا، اس طرف جانے کی اجازت نہیں۔ ہم سمجھ گئے کہ وہ سیکیورٹی کا ایریا ہے۔ میں نے ملاح سے کہا، اچھا تو پھر تم ان درختوں کی طرف ہی ہمیں لے جاؤ، ہم ذرا دور تک سیر کرنا چاہتے ہیں، ہم بنگلور سے یہاں سیر کرنے آئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں نے 5 روپے کا نوٹ نکال کر اسے دے دیا۔ 5 روپے کا نوٹ لے کر وہ بہت خوش ہوا، کہنے لگا، ٹھیک ہے صاحب، ہم تم کو ادھر کی سیر کرا دے گا۔ معلوم ہوا کہ اس طرف جانے کی بھی ممانعت تھی، مگر ملاح ہمیں سمندر میں ایک چکر کاٹ کر کنارے کے ناریل کے جھنڈوں کے پاس لے آیا۔ جہاں ہم کنارے پر اتر کر بیٹھ گئے، میں نے سگریٹ سلگا لیا۔ ایک سگریٹ تمل ملاح کو بھی دیا۔ 6-7 بڑے بڑے سمندری جہاز ہماری دائیں جانب کچھ فاصلے پر سمندر میں لنگر انداز تھے۔ ان کے مستولوں پر اپنے اپنے ملکوں کے جھنڈے لہرا رہے تھے۔ کئی جہازوں پر وائرلیس کے اینٹینے بھی نصب تھے۔ ان میں سے ایک جہاز آئل ٹینکر تھا جس پر بڑی بڑی کرینوں کی طرح 2 اونچے آہنی دروازے سے بنے ہوئے تھے۔ ان جہازوں کے پیچھے پونڈیچری کی بندرگاہ کی عمارت کا اوپر والا حصہ نظر آ رہا تھا جس پر بھارت کا ترنگا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ کمانڈو اورنگزیب کہنے لگا، وہ جہاز کہاں ہیں جن کی ہمیں تلاش ہے؟ میں نے اپنے عقب کی طرف دیکھا۔ ادھر سمندر کا کنارہ کچھ دور آگے جا کر بائیں جانب گھوم گیا تھا۔ میں نے پنجابی میں اسے کہا، میرا خیال ہے کہ وہ جہاز اس طرف ہوں گے۔ اورنگزیب بھی ادھر دیکھنے لگا۔ ہم کشتی میں بیٹھ گئے اور ملاح سے دوسری طرف چلنے کو کہا۔ وہ بولا، صاحب ادھر کو جانا نہیں مانگتا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس طرف جانے کی اجازت نہیں۔ میں نے تمل ملاح کو جیب سے 5 روپے کا ایک اور نوٹ نکال کر دیتے ہوئے کہا کہ وہ ہمیں دور دور رہ کر ہی اس طرف سمندر کی سیر کرا دے، تو وہ تیار ہو گیا۔ اس نے کشتی کو سمندر میں اس طرف موڑ دیا جس طرف سمندر ناریل کے جھنڈوں کے عقب کی طرف مڑ جاتا تھا۔ جیسے ہی ہماری کشتی ذرا آگے سمندر میں آ کر ایک جانب مڑی تو ہمیں کچھ دور سمندر میں 2 بڑی چٹانیں نکلی ہوئی نظر آئیں۔ ان چٹانوں کی دوسری جانب 2 بحری جہاز کھڑے تھے جن کے کچھ حصے ہمیں نظر آ رہے تھے۔ میں نے اورنگزیب سے پنجابی میں کہا، مجھے یقین ہے اورنگزیب یہی ہمارا ٹارگٹ ہے۔
कमांडो औरंगजेब भी इन चट्टानों और उनके अकब में खड़े जहाज़ों की तरफ देख रहा था। कहने लगा, अब इसकी तस्दीक कैसे हो कि यही इसराइली जहाज़ है? इससे पूछो कि इस तरफ जियागामी की खाड़ी कहाँ है। जब मैंने मल्लाह से जियागामी की खाड़ी के बारे में पूछा तो उसने चट्टानों की तरफ इशारा करते हुए बताया कि जियागामी की खाड़ी उस चट्टान के पीछे है। मैंने उससे पूछा, ये जहाज़ किस मुल्क के हैं? वो बोला, मालूम नहीं साहब, पर हमें उस तरफ जाना नहीं मांगता। बस आगे हम नहीं जाएगा, हम वापस जाना मांगता। और उसने कश्ती मोड़ दी। इस असना में हमने एक स्टीमर को देखा जो चट्टानों के अकब से निकलकर दूसरी तरफ तेज रफ्तारी से जा रहा था। औरंगजेब ने कहा, मेरा ख्याल है ये कोस्ट गार्ड्स की बोट है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। अगर ये लोग इधर आ गए और हमारी चेकिंग हुई तो तुम जानते हो कि हमारे पास कमांडो होने के सारे सबूत मौजूद हैं। औरंगजेब ने बिल्कुल ठीक कहा था। उस वक्त हम दोनों की जैकेटों की जेबों में 6 इंतहाई ताकतवर बम और एक कमांडो चाकू मौजूद था। हम ये चीजें इसलिए अपने साथ ले आए थे कि सराय के कमरे में इन्हें छुपाने के काबिल एतबार जगह नहीं थी। कमरे की एक चाबी सराय के मालिक के पास थी और मुमकिन था कि हमारे जाने के बाद वो कमरे की तलाशी लेता। इन कीमती चीजों के मामले में किसी पर भरोसा नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्हें जेब में रखकर समंदर में जहाजों के करीब जाना भी बेहद खतरनाक था। चुनाचे हम वहीं से वापस आ गए। सराय में आकर हम गौर फिक्र में डूब गए। ये गौर फिक्र में डूबने वाली बात ही थी, क्योंकि हमारे सामने एक बहुत बड़ा टारगेट था जिस तक पहुंचने के वास्ते हमारे पास अगरचे हकीकत की नजर से देखा जाए तो कोई सामान नहीं था। बज़ाहिर कोई वसीला भी दिखाई नहीं देता था। सबसे अहम चीज जिसकी हमें जरूरत थी वो 2 ऑक्सीजन मास्क थे, जिन्हें मुंह पर चढ़ाए बगैर हम समंदर की तह में नहीं उतर सकते थे। हमारे सांस इतने लंबे कभी नहीं हो सकते थे कि हम समंदर के नीचे ही नीचे तैरते हुए जहाजों के गिर्द लगी फौलादी तारों को काटें और फिर इन तारों में से निकलकर समंदर के अंदर ही अंदर तैरते हुए जहाजों तक पहुंचे और बारी बारी जहाजों के पैंदों के साथ मैग्नेट बम चस्पा करें। इसके लिए जरूरी था कि हमारे पास अगर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं तो कम से कम 15-20 मिनट तक समंदर के अंदर रहने के लिए ऑक्सीजन मौजूद हो, और जदीद ऑक्सीजन मास्क में इतनी गुंजाइश होती है। हम इसी मसले पर गौर कर रहे थे कि कमांडो औरंगजेब को एक बड़ा अच्छा ख्याल सूझा। कहने लगा, यहाँ समंदर है तो ऐसी बीच यानी ऐसा साहिल समंदर भी जरूर होगा जहाँ मुल्की और गैर मुल्की लोग आकर समंदर में तैराकी करते होंगे। मुझे यकीन है कि अगर यहाँ कोई ऐसी जगह है तो वहाँ कोई न कोई स्विमिंग या डाइविंग क्लब भी जरूर होगी। अगर कोई डाइविंग क्लब होगी तो इस क्लब में ऑक्सीजन मास्क भी जरूर होंगे। क्या ख्याल है तुम्हारा? मुझे रोशनी की एक किरण नजर आई। मैंने कहा, अगर कोई डाइविंग क्लब हुआ तो यकीन करो वहाँ से ऑक्सीजन मास्क हासिल करना हमारे लिए मुश्किल नहीं। ये मालूमात मैं अकेला जाकर हासिल करता हूँ। कमांडो औरंगजेब बोला, तुम इस मिशन पर जाओ, मैं किसी मार्केट में जाकर ऐसा प्लास या कटर हासिल करने की कोशिश करता हूँ जो फौलादी तार को भी काट दे। उसके फौरन बाद कमांडो औरंगजेब अपने मिशन पर और मैं अपने मिशन पर रवाना हो गया। सबसे पहले मैं पौंडीचेरी की बंदरगाह पर गया। खासी बड़ी बंदरगाह थी, अंग्रेजों के जमाने की बड़ी शानदार इमारत थी। बड़े बड़े मेहराबी सुतून थे। बाहर एक तरफ कारें, ट्रक और दूसरी गाड़ियां खड़ी थीं। एक जानिब छोटा सा रेस्तोरां बना हुआ था। मुझे मालूम था जिस किस्म की मालूमात मुझे चाहिए वो कहाँ से हासिल हो सकती हैं। मैं रेस्तोरां में आकर एक तरफ बैठ गया। दिन का वक्त था। रेस्तोरां में काफी लोग बैठे हुए थे। एक तरफ एक गैर मुल्की जोड़ा भी बैठा कॉफी पी रहा था। आदमी की उम्र ज्यादा थी, औरत नौजवान थी। उसके बाल सुनहरी घुंघरियाले थे। बरतानिया की औरत लग रही थी। डाइविंग और स्विमिंग का शौक इन लोगों को ज्यादा होता है। चुनाचे ये लोग जिस मुल्क के साहिल समंदर की सैर को जाते हैं इस किस्म की स्विमिंग क्लबों या डाइविंग क्लबों के बारे में जरूर पूछते हैं। मैं उठकर उन लोगों के पास आ गया। मैंने जाते ही अंग्रेजी में कहा, आप लोग मुझे बरतानिया से आए हुए लगते हैं। बूढ़ा अंग्रेज मुझे गौर से देखने लगा। लड़की मुस्कुरा रही थी। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हम यॉर्कशायर के रहने वाले हैं, इंडिया की सयाहत के लिए आए हैं। मैं उनसे इजाजत लेकर उनके पास ही कुर्सी पर बैठ गया और इंडिया के मशरकी घाट के समंदर और समंदरी तूफानों का जिक्र छेड़ दिया। बूढ़े अंग्रेज ने पूछा, क्या तुम गाइड हो? मैंने हंसकर कहा, नहीं जनाब, मैं भी आपकी तरह एक सयाह हूँ। इंडिया का रहने वाला हूँ, मगर शुमाल में हिमालय के दामन में रहता हूँ। पहली बार पौंडीचेरी की सियाहत करने आया हूँ। मुसीबत यह है कि मुझे स्विमिंग और खास तौर पर समंदर में गोताखोरी का बड़ा शौक है, लेकिन जहाँ मुझे कोई गाइड नहीं कर रहा कि मैं अपना गोताखोरी का शौक कैसे और कहाँ पूरा कर सकता हूँ। बूढ़ा अंग्रेज हंसने और जेब से पाइप निकालकर सुलगाने लगा। साथ ही अंग्रेज लड़की की तरफ देखकर बोला, एलिज़ाबेथ, तुम इस मकामी सयाह को समझाओ। अंग्रेज लड़की का नाम एलिज़ाबेथ था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे गोताखोरी का शौक है, बल्कि मैं तो कल सारा दिन समंदर में डाइविंग करती रही हूँ। मुझे गौहर मकसूद मिल गया। मैंने बड़ी मिन्नत करने के अंदाज में लड़की से कहा, प्लीज मुझे बताओ कि यहाँ ऐसी कौन सी क्लब है जहाँ मैं अपना गोताखोरी का शौक पूरा कर सकता हूँ। मैं इसकी खातिर 100 रुपए तक फीस भी अदा करूंगा। वो अंग्रेज बाप बेटी बड़े अच्छे लोग थे और फिर सयाह थे, और सयाह आम तौर पर अपने मुल्क से बाहर जाने के बाद बड़े खुश अखलाक हो जाते हैं। बूढ़ा अंग्रेज पाइप का धुआं छोड़ते हुए बोला, नो यंग मैन, तुम्हें फीस देने की कोई जरूरत नहीं। हमने पौंडीचेरी डाइविंग क्लब की 1 माह की मेंबरशिप ले रखी है और हमें इख्तियार है कि हम अपने एक मेहमान को गोताखोरी के लिए साथ ले जा सकते हैं। तुम कहाँ रहते हो? मैंने यूं ही एक होटल का नाम ले दिया। बूढ़ा अंग्रेज बोला, ओके,
अभी हमें पौंडीचेरी का कला देखने जाना है। तुम ऐसा करो, अब दिन के 10 बजे हैं, तुम ठीक 1 बजे यहाँ इसी रेस्टोरेंट में आ जाना। हम तुम्हें अपने साथ डाइविंग क्लब में ले चलेंगे, तुम अपना शौक पूरा कर लेना। मुझे ये पूछने की जरूरत नहीं थी कि इन लोगों के पास ऑक्सीजन मास्क हैं या नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन मास्क के बगैर डाइविंग या गोताखोरी का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। मैंने उठकर उनसे हाथ मिलाया और ठीक 1 बजे वहाँ आने का कहकर चला गया। सराय में पहुंचा तो कमांडो औरंगजेब पहले से मौजूद था। मुझे देखते ही कहने लगा, मैंने तो अपना मिशन मुकम्मल कर लिया है, तुम सुनाओ क्या सुराग मिला। मैंने अपनी सारी कहानी बयान कर दी। वो कहने लगा, ऑक्सीजन मास्क तो डाइविंग क्लब वालों के पास होंगे। मैंने कहा, बिल्कुल उनके पास होंगे और वहाँ से उन्हें उड़ा कर लाना भी मेरा काम है। तुम बताओ इस लिफाफे में क्या है। औरंगजेब ने लिफाफे में से मुझे 2 प्लास निकाल कर दिखाए। ये फौलाद के बड़े मजबूत प्लास थे। वो बोला, मैंने इन्हें इस्तेमाल करके देख लिया है, ये फौलाद की मोटी से मोटी तार को काटने की ताकत रखते हैं। मैंने कहा, ठीक है, अब ऐसा है कि इनको चारपाई पर बिस्तर के नीचे रख दो। मैग्नेट बम और कमांडो चाकू हम अपने पास ही रखेंगे। इस शहर में हमें ऐसा कोई खतरा नहीं है कि पुलिस बाजार में रोककर हमारी तलाशी ले। औरंगजेब ने दोनों प्लास अपने बिस्तर के नीचे अच्छी तरह छुपा दिए। जब 12:45 हुए तो मैंने औरंगजेब को सराय में ही छोड़ा और खुद बस में बैठकर बंदरगाह की तरफ चल पड़ा। ठीक 1 बजे मैं बंदरगाह वाले रेस्टोरेंट में था। कोई 10 मिनट बाद बूढ़ा अंग्रेज और उसकी बेटी एलिजबेथ भी आ गए। मैंने वहीं थोड़ा बहुत खाना खाया। खाने का बिल आया तो मैंने बूढ़े अंग्रेज को अदा न करने दिया और खुद अदा किया। वो मेरी इस बात से बड़ा मुतासिर हुआ। उन लोगों को मुतासिर करना ही मेरा काम था। वो मुझे अपनी खटारा सी गाड़ी में ड्राइविंग क्लब ले गए, जो साहिल समंदर पर नारियल और ताड़ के ऊंचे ऊंचे दरख्तों के दरमियान एक लंबे केबिन की तरह बनी हुई थी। ये एक रिटायर्ड मद्रासी नेवल ऑफिसर ने बनाई थी, जिसे डाइविंग का वसी तजुर्बा था। बूढ़े अंग्रेज ने मेरा उससे अपने मेहमान की हैसियत से तारुफ कराया और कहा कि ये हमारा दोस्त भी आज हमारे साथ गोताखोरी करेगा। डाइविंग क्लब के मद्रासी मालिक का नाम रामाकटी था। रामाकटी ने अपनी सफेद दांतों की नुमाइश करते हुए कहा, जरूर जरूर, ऑफ कोर्स। मैं बड़ा अच्छा तैराक और गोताखोर जरूर था, मगर मास्क लगाकर गोताखोरी कभी नहीं की थी। मैं उसके नशेब फराज से भी आगाह होना चाहता था। हम तीनों ने डाइविंग सूट पहने और ऑक्सीजन मास्क लेकर एक कश्ती में बैठ गए। तैराकी तो समंदर के किनारे पर भी होती है, मगर गोताखोरी के लिए जरा खुले समंदर में जाना पड़ता है। कश्ती समंदर में जा रही थी और मैं ऑक्सीजन मास्क का मुआयना कर रहा था। मैं ये जाहिर कर रहा था जैसे मुझे इसकी तकनीक का इल्म है। मैंने कहा, मैंने काठियावाड़ के साहिल पर भी बहुत गोताखोरी की है, मगर वहाँ जो क्लब थी उसके पास जरा मुख्तलिफ ऑक्सीजन मास्क थे। इस मास्क की ड्यूरेशन कितनी होगी? असल में मैं यही मालूम करना चाहता था कि जो मुझे मालूम नहीं था कि इसे पहनकर आदमी समंदर के अंदर कितनी देर तक रह सकता है। बूढ़े अंग्रेज ने बताया कि इसकी ड्यूरेशन सिर्फ 15 मिनट है। उसकी बेटी एलिजबेथ ने कहा, लेकिन इस क्लब में दूसरे किस्म के ऑक्सीजन मास्क भी हैं, उनकी ड्यूरेशन आधा घंटा है। इसमें ऑक्सीजन का एक फालतू छोटा सिलेंडर लगा होता है। मुझे उसी ऑक्सीजन मास्क की जरूरत थी। मैंने सोच लिया कि वापसी पर उस ऑक्सीजन मास्क का मुआयना भी करूंगा और ये भी देखूंगा कि उसे क्लब में किस जगह पर रखा जाता है। समंदर में कुछ दूर जाकर कश्ती रोक दी गई। ये मोटर बोट थी। हमने ऑक्सीजन मास्क पहने, पाँव में मछली की दुम की तरह के फ्लैपर भी चढ़ा लिए और मैं इस इंतजार में यूं ही अपने पाँव के फ्लैपर्स को दुरुस्त करने लग गया कि ये लोग समंदर में कैसे उतरते हैं। मैंने देखा कि पहले लड़की मोटर बोट के किनारे पर हमारी तरफ मुंह करके बैठ गई, फिर उसने पीछे की तरफ कलाबाजी लगाकर अपने आप को समंदर में गिरा दिया। बूढ़े अंग्रेज ने भी ऐसा ही किया। इसका मतलब था कि गोताखोर उसी तरह समंदर में उतरते हैं। चुनाचे मैंने भी इसी तरह उल्टी कलाबाजी लगाकर समंदर में छलांग लगा दी। उल्टी कलाबाजी लगाने से ये हुआ कि जब मैं समंदर में उतरा तो अपने आप मेरा रुख सीधा हो गया। समंदर के ऊपर लहरों में हवा की वजह से तेजी थी, मगर समंदर के नीचे बड़ा सुकून था। मेरी आंखों पर ऑक्सीजन मास्क का गोल शीशा चढ़ा हुआ था। मुंह में नाली थी जिसमें से मेरे फेफड़ों में ऑक्सीजन दाखिल होती और उसी नाली के जरिए मेरे फेफड़ों की कार्बन डाइऑक्साइड बुलबुलों की शक्ल में खारिज हो रही थी। समंदर में तैरते हुए मुझे दबाव महसूस हो रहा था, मगर ऑक्सीजन की वजह से मैं बड़े आराम के साथ पाँव के फ्लैपर हिलाता बूढ़े अंग्रेज और उसकी बेटी के पीछे पीछे मछली की तरह तैरता चला जा रहा था। 10 मिनट तक हम समंदर के अंदर इधर उधर तैरते रहे, फिर बाहर निकल आए। 2-3 बार गोताखोरी करने के बाद हम मोटर बोट लेकर वापस क्लब में आ गए। वहाँ हमने रबड़ के बने हुए और जिस्म के बिल्कुल साथ चिमट जाने वाले डाइविंग सूट और ऑक्सीजन मास्क उतार कर लोहे की अलमारी में रख दिए, जहाँ दूसरे डाइविंग सूट और ऑक्सीजन मास्क भी लटक रहे थे। यहाँ मुझे एलिजबेथ ने वो ऑक्सीजन मास्क दिखाया जिसे पहनकर गोताखोर समंदर के नीचे आधे घंटे तक रह सकता था। उस ऑक्सीजन मास्क के पीछे की जानिब एक प्लास्टिक की छोटी ट्यूब की शक्ल का फालतू ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगा हुआ था। मैंने देखा कि इस किस्म के 7-8 ऑक्सीजन मास्क ही अलमारी के दूसरे खाने में लटके हुए थे। मैंने उस लोकेशन को जहन में बिठा लिया। हमने शावर में गुस्ल किया, अपने अपने कपड़े पहने और साहिल समंदर पर एक कैनपी के नीचे बैठकर कॉफी पीने लगे। मैंने वही मालूम कर लिया कि क्लब शाम होते ही बंद हो जाती है। शाम का अंधेरा हो जाने के बाद वहाँ कोई तैराकी और समंदरी गोताखोरी नहीं होती। वहाँ कुछ देर बैठने के बाद मैंने कहा, अब मैं इजाज़त चाहूँगा, मुझे मार्केट में एक दोस्त से मिलना है।
बूढ़े अंग्रेज ने कहा, हम तुम्हें वहाँ ड्रॉप कर देंगे, हम भी अब जा रहे हैं। उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया और मैं उन्हें उन सड़कों पर से गुजारता हुआ अपनी सराय वाली चौक में ले आया। ये रास्ता मैंने अपने जहन में पक्का कर लिया था, क्योंकि आधी रात के बाद मुझे कमांडो औरंगजेब को लेकर इसी रास्ते से डाइविंग क्लब की तरफ जाना था। मैं चौक में उतर गया। बूढ़े अंग्रेज ने कहा, यंग मैन, हम कल भी दोपहर के बाद क्लब आएंगे, अगर तुम भी आ जाओ तो हमें खुशी होगी। मैंने दोनों बाप बेटी से हाथ मिलाते हुए कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। गाड़ी आगे निकल गई। मैं सराय में आ गया। कमरे में औरंगजेब मौजूद था। मैंने उसे सारे वाकयात सुनाए और कहा, हमें आज रात क्लब का ताला तोड़कर ऑक्सीजन मास्क और डाइविंग सूट उड़ा कर लाने होंगे। वो कहने लगा, तुमने रास्ता देख लिया है? मैंने कहा, रास्ता भी याद कर लिया है और क्लब की लोकेशन भी देख ली है। हम शाम तक अपने कमरे में ही रहे। रात को थोड़ा सा खाना खाया, मैग्नेट बम अपने पास ही रखे, कमांडो चाकू निकाल कर चेक किए। अगरचे हमें किसी का खून नहीं करना था, वहाँ चौकीदार की मज़ाहमत की हमें पूरी तवक्को थी। ऐसी सूरत में हमें चौकीदार, वहाँ जो कोई भी गार्ड्स वगैरह भी थे, उन्हें कमांडो एक्शन के बाद सिर्फ इतनी ज़रब लगानी थी कि कुछ वक्त के लिए बेहोश हो जाएं। याद रखें, कमांडो कभी नाहक खून नहीं बहाता, वो सिर्फ अपने दुश्मन पर कारी वार करता है और एक कमांडो के वार से कोई जिंदा नहीं बच सकता। हमारे पास कमांडो का खास स्याह लिबास नहीं था, हमें इस लिबास की ज़रूरत भी नहीं थी, बस हमें रात का अंधेरा होने का इंतज़ार था। हम रात के ठीक 1 बजे सराय से निकले। उस वक्त सब लोग सो रहे थे। वहाँ से साहिल समंदर वाली डाइविंग क्लब ज्यादा दूर नहीं थी। रास्ता मुझे याद था। हम सड़क के किनारे किनारे जहाँ अंधेरा था चले जा रहे थे। सड़क खाली थी। किसी वक्त कोई गाड़ी हम पर अपनी हेडलाइट्स की रोशनियां डालती गुजर जाती। ये समंदर के करीब का इलाका था और गुंजान नहीं था। 2-3 सड़कों पर से गुजरने के बाद हम उस बड़ी सड़क पर आ गए जो सीधी साहिल समंदर को जाती थी। वहीं क्लब का केबिन भी था। मैंने दिन के वक्त सारा महल वकूअ देख रखा था। हमें वहां तक पहुंचने में कोई आधा घंटा लगा। सीधे रास्ते की तरफ जाने की बजाय मैं औरंगजेब को लेकर ऊपर की तरफ वाले दरख्तों के झुंड की तरफ से होता हुआ डाइविंग क्लब के अकब में आ गया। यहाँ आकर हम अंधेरे में एक जगह बैठ गए। क्लब का केबिन हमसे कोई 200 गज दूर था। क्लब की अकबी दीवार पर बिजली का बल्ब जल रहा था। हर तरफ गहरी खामोशी थी। इर्द गिर्द भी अंधेरा था। समंदर की जानिब से हवा चल रही थी और किसी वक्त समंदर की इन लहरों की हल्की हल्की आवाज आ जाती जो साहिल समंदर पर आकर वापस पलट जाती थी। औरंगजेब ने पूछा, क्लब का कोई बैक डोर है? मैंने आहिस्ता से कहा, नहीं, उसका एक ही दरवाजा है। हमें इस दरवाजे से अंदर दाखिल होना होगा। मेरे पीछे पीछे चले आओ। मैं आगे आगे चल पड़ा। क्लब का केबिन जब हमसे कोई 20-25 गज दूर रह गया तो मैं रुक गया। यहाँ लोहे का एक बड़ा ट्रैश कैन पड़ा था। हम उसके पीछे छुप कर बैठ गए। मैंने कहा, अगर जहाँ कोई चौकीदार हुआ तो वो दूसरी तरफ दरवाजे के बाहर कहीं बैठा होगा। कमांडो औरंगजेब ने कहा, मैं जाकर मालूम करता हूँ। मैंने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, तुम बैठो, मैं जाता हूँ। मैंने क्लब का दरवाजा देखा हुआ है। रास्ता साफ हुआ तो मैं तुम्हें कोयल की हल्की सी आवाज में सिग्नल दूंगा। और उसके साथ ही मैं उठा और ट्रैश कैन के पीछे से निकलकर झुककर क्लब की इमारत के बाएं जानिब चलने लगा। जमीन पर घास भी थी और संगरेजे भी बिखरे हुए थे। इन संगरेजों पर चलने से आवाज पैदा हो रही थी जिसको दबाने की मैं हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। मैं क्लब की दीवार के पास पहुंचकर उसके साथ सीधा होकर लग गया। यहाँ अंधेरा था। मैं दबे पांव दीवार के साथ लगकर आगे बढ़ने लगा। दीवार खत्म हुई तो मैंने बड़ी एहतियात के साथ सर जरा आगे निकाल कर देखा। क्लब के दरवाजे के आगे कोई आदमी बेंच पर पहलू के बल लेटा हुआ था। वो जिस तरह बेहिस्सो हरकत था, मालूम होता था कि वो सो रहा है, मगर मुझे उसे हर हालत में बेहोश करना था। मैंने एक लम्हे के लिए तीनों जानिब देखा। वहाँ सन्नाटा और अंधेरा था। कोई आवाज नहीं आ रही थी। कोई दूसरा पहरेदार भी नहीं था। मैंने कमांडो चाकू नहीं निकाला था, उसकी जरूरत नहीं थी। मेरे बाएं बाजू के पट्टे जरूर फड़कने लगे थे। उसी बाजू से मैंने सारा काम लेना था। मैं पहलू वाली दीवार से निकलकर क्लब के सामने वाली दीवार के साथ लगकर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। अब मैं रोशनी में था। क्लब के दरवाजे के ऊपर जो बल्ब जल रहा था उसकी रोशनी बाकायदा मुझ पर पड़ रही थी, मगर अब मैं उस रोशनी से बेनियाज था। अब मेरी नजरें अपने टारगेट पर थी। उस वक्त मेरा टारगेट दरवाजे के आगे बेंच पर सोया हुआ आदमी था। ये आदमी यकीनन चौकीदार था जिसको समंदर की तरफ से आने वाली ठंडी हवा ने थपक कर सुला दिया था। मैं पाँव सुकेड़ सुकेड़ कर चल रहा था। बड़ी आहिस्तगी के साथ मैं चौकीदार के सर की जानिब आ गया। अब मुझे ज्यादा इंतजार नहीं करना था। ये दुबला पतला सा काला मदरासी चौकीदार था जो दुनिया और माफिया से बेखबर होकर सो रहा था। ये मेरे लिए बड़ा ही आसान शिकार था। बस सिर्फ इतनी एहतियात की जरूरत थी कि उसके हल्क से कोई आवाज ना निकले। चौकीदार के सर की तरफ पहुंचकर मैंने ज्यादा देर न लगाई। ये देर लगाने का मौका भी नहीं था। मेरा ख्याल है सिर्फ 2 सेकंड लगे होंगे। कमजोर सा मदरासी आदमी था। मैंने एक ही जुम्बिश में अपना सीधा हाथ उसके मुंह पर रखकर सर को जरा सा उठाया। उसके साथ ही उसकी पतली सी गर्दन मेरे बाजू के शिकंजे में आ गई। मैंने उसे झटका बिल्कुल न दिया। इस तरह उसकी गर्दन टूट सकती थी और मैं उसे मारना नहीं चाहता था। बस इतनी देर उसे बाजू के शिकंजे में रखा जब तक कि वो बेहोश न हो गया। मैंने मुंह से कोयल की हल्की आवाज निकाली। दूसरे लम्हे कमांडो औरंगजेब मेरे पास मौजूद था।
ہم نے چوکیدار کی آدھی دھوتی پھاڑی، پھر اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا اس کے منہ میں ٹھوس دیا اور دوسرے ٹکڑے سے اسے بینچ پر اس طرح جکڑ دیا کہ وہ ہوش میں آنے کے بعد نہ تو کوئی آواز نکال سکتا تھا اور نہ اٹھ کر بھاگ سکتا تھا۔ اس کام سے فارغ ہوتے ہی میں نے جیب سے لوہے کی ہک نکالی اور کلب کے دروازے کا تالا کھول ڈالا۔ ہم کمرے میں داخل ہو گئے، دروازہ بند کر دیا، اندر اندھیرا تھا۔ کمانڈو اورنگزیب نے ماچس جلائی، میں سیدھا لوہے کی الماری کے پاس آ گیا، اس کو کھولا، اس کے اندر سے آدھے گھنٹے کے ڈیوریشن والے 2 آکسیجن ماسک نکالے، مزید ایک فالتو آکسیجن سلنڈر دوسرے ماسکوں پر سے اتار لیا، ربڑ کے 2 ڈائیونگ سوٹ نکال لیے، انہیں اچھی طرح سے تہہ کر کے وہیں سے چمڑے کا ایک تھیلا اٹھا کر انہیں اس میں ڈالا اور جس خاموشی سے اندر آئے تھے اسی خاموشی سے باہر نکل کر درختوں کے اندھیرے کی طرف دوڑ پڑے۔ سارا کام مختصر وقت میں کامیابی کے ساتھ ہو گیا تھا۔ ہم جس طرف سے آئے تھے اسی طرف سے واپس سرائے کی طرف روانہ ہو گئے۔